نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا. آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے. حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے, اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں, کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں. ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. مہمان کو لے کر چل پڑے. جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں, گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں, 2 بچے ہیں ان کے. بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے, کہا ایک آدمی کا کھانا ہے, مہمان گھر پر آیا ہے. اور خاتون بھی کیسی ہے, صحابیہ ہے, کہتی ہیں گھبرائیے مت, اللہ کے رسول کے مہمان آئے, میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی, میں سلا دوں گی, آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے, رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں. اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی, چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا, مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں بس منہ چباتے رہنا, اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا, میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے, اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا, بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا, مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے, کہا ہم بھی کھا رہے ہیں. اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا. صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے, اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. احساس کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا. جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی. یہ بھی واقعات مشہور ہیں. ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے, صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا. ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے. یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے. مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں امیر المومنین کی بیوی تھی.
अमीरुल मोमिनीन की बहू थी, ये एहसास था एक औरत के दर्द की आवाज आए तो खलीफा बेचैन हो जाता। आज फिलिस्तीन से उठने वाली आवाजों से किसी की नींद पर फर्क नहीं पड़ता, किसी की नींद खराब नहीं होती। वक्त के अय्याश हुक्मरान, जालिम हुक्मरान अपनी कुर्सियों पर वैसे ही मजे ले रहे हैं, बल्कि बसा औकात ऐसा लगता है ये बच्चों की और बच्चियों की झिझोड़ने वाली आवाज इनकी कुर्सियों को क्यों नहीं हिलाती। याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उन बच्चों को जो आज मार दिया गया है, ये सूरह तकवीर की आयतें बता रही हैं, ये क़यामत के दिन बच्चियां उठाई जाएंगी और रब ताला से पूछेंगी मौला मुझे बता किस जुर्म में मुझे मारा गया था, मेरा गुनाह क्या था जो मुझे कत्ल किया गया। आज यूरोप के दरिंदे और इजराइल के जितने जालिम उनके कत्ल में शरीक हैं, वो अलग कातिल हैं, लेकिन ये चुप्पी और ये खामोशी पूरी दुनिया की अलग कातिल है, ये अलग कातिल है। दर्द हमें इस बात का हो रहा है, इसीलिए शायर ने कहा था न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम ही है डाका डालना, डाकुओं का काम ही है माल छीनना, लेकिन सवाल तो तुम्हारी रहबरी का है। ये हालात कब बदलेंगे मेरे अजीजों? उस वक्त बदलेंगे जब हमारा जवान एहसास की जिंदगी जीने लग जाए। आज हमें अफसोस है और अलमिया है, हम उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनके ऐश में कोई कमी नहीं होती आज, लेकिन उनको कोस करके बोल करके आपको ऐसा लगता है यहां क्या होने वाला है। होने वाला यह है, आपको हम नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको जो मनसब दिया, आप तो अय्याश ना बनो, आप तो इस तरह की बेहिसी की जिंदगी ना गुजारो, लापरवाही की जिंदगी आप तो ना गुजारो। कभी दस्तरखान पर बैठे हो, नरम ग़िज़ाएं खा रहे हो और तुम्हारे भाइयों और बहनों के चीखने की आवाज आई, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से उतरती हैं? कोई मां तड़प रही हो सामने, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से तड़प गुजरती है? जब खाना हलक से नहीं जाता तो मैं उन नौजवानों से पूछता हूं, आज भी रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके तुम जो अय्याशियां कर रहे हो, तुम्हारी पूरी रात जो गेम में गुजर जाती है, इंटरनेट पे गुजर जाती है, तुम्हें इस दर्द का एहसास कब होगा? आशियाना लुटता चला गया और अब भी अगर एहसास नहीं आया तो कब आएगा? शायर ने कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। ये जिस तरह की जिंदगी गुजारने के हमने उसलूब बनाए हैं, आज क्या ये अलमिया नहीं है? करोड़ों की तादाद होने के बाद हर ऐरा गैरा नत्तू खेरा आंख दिखाता है, हर कुत्ता हम पर भौंकने लगता है। वजह सिर्फ यही है कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ करके तुम्हारे पास दरवाजा कौन सा था जहां अगलों ने भी इज्जत पाई, पिछलों ने भी इज्जत पाई? सारी इज्जत का दारो मदार मेरे मुस्तफा के कदम थे। और आज कुल मिलाकर के मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी दर्जे पर लाता हूं ये कहते हुए, सबसे बड़ा हसास इस दुनिया में कोई था जो दर्द का एहसास करता था तो वह आमिना का लाल मदीने का ताजदार, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आज क्या गुजरती होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। यह उम्मतियों के बारे में हुजूर का फरमान है। और जहां उस नबी के उन उम्मतियों को जो हमेशा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान वक्त कर चुके, जब काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, टुकड़ों में बदल दिया जा रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी? आप ये सोचते होंगे मदद क्यों नहीं आती? मदद आएगी, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है, पूरी दुनिया को देखा जा रहा है इसमें कितने प्यूरिटी वाले हैं, इखलास वाले कितने हैं और कितने सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, ये भी देखा जाएगा। करबला का मैदान जिस तरह इम्तिहान की घड़ी था,
इसी तरह आज का दौर भी इम्तिहान का वक्त है। ये सारे मोमिनीन को देखा जा रहा है। होना तो ये चाहिए जब हमारे घर से जनाजा निकलता है तो गम इतना होता है कि बंदा तौबा कर ले, मौला मेरे भी जाने का वक्त करीब आ जाएगा। जब मौत देखता है इंसान घबराता है, डरता है और तौबा करके बाज आता है। और आज इतने बड़े बड़े हादसे देख करके अगर कोई नहीं सुधरता तो फिर इसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एहसास है वो हुजूर यही फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, मन अस्बहा मिन्ना मल्लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितने हैं हम में से जो सुबह करते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के बारे में कहते हैं। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दी मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर की उम्मत के लिए सिर्फ दुआ भी करता है तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत है उस पर। तो आज ये एहसास पैदा करो, दर्द पैदा करो एक दूसरे का, और उन मोमिनीन के लिए बासाब्ता रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। दुआ मोमिन का एक हथियार है। जब एहसास के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पुकारा जाता है तो अर्शे इलाही भी हिल जाता है और दुआएं बारियाब होती हैं और मदद जरूर आएगी। अजीजान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार से हमारी दूरी या आज हमारे दरमियान इंतशार पैदा की हुई है। हम जो भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, जगह जगह अलग अलग जमातों में, टुकड़ों में तब्दील है, एक ही वजह है, जिस रस्सी को हमेशा पकड़ने के लिए कहा गया था वो रस्सी हाथ से छूटती है तो फिर न तुम्हारा निगहबान तुम्हें नजर आता है, न तुम्हारी जमात का तुम्हारा कोई शनाख्त तुम्हारी बाकी रह जाती है। इसलिए जिस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया है वो रस्सी कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की, नामूस की, उनकी इज्जत की, उनकी सुन्नतों की रस्सी है। आ जाओ ए नौजवानों, इज्जत वहीं पर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम इज्जत ढूंढते हो हरगिज मुमकिन नहीं। आबरूए मां जनामे मुस्तफास, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। आज तो आज है, ये सब पुकारना छोड़ दो दुनिया को। दुनिया बहरी है, गूंगी है, तुम्हारी बात ना इनके कानों में जाती है ना दिलों पर उतरती है। ये मदद की दुहाइयां देना बंद कर दो, इस दुनिया को पुकारना छोड़ दो। इसलिए कि हमारा अकीदा यह है, यहां पर भी और आखिरत में भी हमारा अगर कोई निगहबान और पासबान है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हश्र के मैदान में आपकी कैफियत क्या होगी? ये सुनो तो दिल बाग बाग होता है। ऐ नौजवानों, तवज्जो से, हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में एक ही कैफियत हुजूर ने बताई और दीगर बहुत सारे हैं, उसमें एक कैफियत मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाते हैं मैदान महशर में जहां जम्मे गफीर होगा, पूरे इंसान जमा होंगे, हुजूर फरमाते हैं मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी और वो कभी कभार खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उस भरे महशर के मैदान में हमें पहचानने वाला कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। जब तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमें नहीं छोड़ना चाहते। कब्र के हालात के बारे में भी बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ो। बुजुर्गों के मुतालिक ये क्या आपने नहीं पढ़ा? एक मोमिन साले जब कब्र में जाता है, मुनकर नकीर के आने से पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरिश्तों से कहते हैं जरा आहिस्ता से जगाओ, बड़ा थक करके आया है, ये मेरा गुलाम है। ताज शरिया ने ये फरमाया था बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है।
तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। ये उनसुर इसलिए मैं बता रहा हूं, वो खबर में भी हमारे पास आने वाले हैं और हश्र में भी आने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत की सुनो, आला हजरत ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बात समझ करके चलें, जो मोहब्बत हमें हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करा देती है, वो मोहब्बत मेरे मुस्तफा की है। आज हम वही लेकर के चलते हैं, आगे चले पीछे चले, उधर जाएं इधर जाएं, हजारों के मजमे में हम भी चलते हैं तन्हा, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी हो। खौफ इस बात का नहीं आता कि ये इधर से गर्दन मारेंगे उधर से मारेंगे, इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि नबी पाक का दामन साथ में है। जिस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए, अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं। हमारा तो अहद ये है, जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है। आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो, उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है। हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं। उनका नाम लेना दुनिया के नजदीक आतंकवादी है, तो हम ऐसे आतंकवाद होने पर फख्र भी करते हैं। ये कोई डर की बात नहीं है। नबी पाक की मोहब्बत का ऐलान करना, उनके दामन को थामे रखना तुम्हारी नजरों में जुर्म है। हम इसको नहीं मानते, इस जुर्म को हम करोड़ बार करने को तैयार हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जज्बा लेकर के चलो जो सैयदना उमर फारूक ने कहा था। हुजूर ने उनसे पूछा था, उमर जब कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और वो उठाएंगे मुर्दे को और सवाल करेंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? उमर फारूक ने क्या कहा था? पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो फरिश्ते कब्र में आएंगे मेरी मौत के बाद, सिर्फ सवाल ये है आका, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत उस वक्त भी बाकी रहेगी? नबी पाक ने फरमाया, उमर ये दूसरों की मोहब्बत है जो मौत के साथ खत्म होती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी। तब जवाब क्या है? सुनो जवाब क्या है। हजरत उमर मजलिस से उठ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अब जो मुनकर नकीर फरिश्ते आने वाले हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। जब नबी पाक की मोहब्बत साथ है तो फिर डर किस बात का है, खौफ किस